Good morning, children. This is Push English, and I am Renuka Singh, and I'm here with next chapter from your textbook Hornbill, Silk Road, which is written by Nick Middleton. In this particular video, I'm going to discuss about the characters, about the various places where which have been mentioned in the story in a travelogue written by Nick Middleton, and little about author. So let us proceed forward. This is the man who writes travelogue. He is Nick Middleton, you can see. And then let us see what Wikipedia says about Nick Middleton. It says that he was born in 1960 and he is a British physical geographer and a supernumerary fellow of St. Anne's College, Oxford. He specializes in desertification. Nick Middleton was born in London, England. This particular story, which is a travelogue, has been written by Nick Middleton, and this chapter is about narrator's journey from slopes of Ravu to Mount Kailash. So this has to be noted down, Ravu to Mount Kailash. He completes Kora. Kora is any religious visit. So to bid him farewell, in the end, Lamo, who is a हाँ तो एंड में जो है एक्चुअली लामो जो है एक लेडी है जिन्होंने उनको एकोमोडेशन दी थी रहने के लिए और लास्ट में जाते वक्त वाइल सेइंग गुड बाय शी प्रेजेंटेड नरेटर अ लॉन्ग स्लीव्ड शेपस्किन कोट. ठीक है, तो उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं. First taking an insight into the person who has written the travelogue. So it's about author Nick Middleton. He teaches geography at Oxford University and he is a fellow of alumni of St. Anne's College. He is a Royal Geographical Society award-winning writer. So to add to his honor, he had won this award and he's author of travelogues. Like I told you, this Silk Road is also one of the travelogues that he has written. Okay. So Dr. Nick Middleton's background is that he is in physical side of geography, लेकिन उनका ये interest जो है that is why it has been shown in this travelogue also. He had just interest in this entire subject. उनका academic role एक environmental consultant की तरह है, वो एक freelance author भी है who has written more than 200 articles in journals, magazines के लिए, journals के लिए. उन्होंने 200 articles लिखे हैं newspapers के लिए और करीब 16 books लिखे हैं. To his credit, 16 books and 200 articles. He has also co-written and edited another 9 volumes. So this is about author. Little bit more. Here when we read this travelogue, you'll find that he enlists the challenges and hardships he faced in the Silk Road regions as they are now. तो अब उन्होंने इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे ट्रैवलॉग में ये बताया है कि किस किस्म के चैलेंजेस और हार्डशिप्स फेस करते हैं जो लोग सिल्क रोड की जर्नी पे जाते हैं. और द रीडर फाइंड्स इट रिफ्रेशिंग टू ट्रैवर्स such vast tracts of physical geography, expanses of the natural world that remain largely untamed. Normally हर इंसान के बस का नहीं है कि हम ऐसी लंबी यात्रा पर जाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही रिफ्रेशिंग वे में उन्होंने ये सारी फिज़िकल जोग्राफ़ी को कवर अप किया है. जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके एक्सपांस को उन्होंने ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है. और आपको पता ही होगा सिल्क रोड को हम इट्स अ ट्रेड रूट और एक सिंगल हाईवे है. बहुत सारे देयर इज़ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड रूट्स देयर विच लिंक्स यूरोप विद एशिया. एंड why it is named as Silk Road? Because there was a trade was made possible between the countries, between these continents, and there was the silk which was imported and exported. So silk, horses, exotic fauna and flora, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी. And just about every transaction imaginable has occurred along its many trails over the centuries. और सालों से, सदियों से कई सारे transactions had been possible through the Silk Road.
तो ये शॉर्ट में कुछ ऐसे मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो कई तरीके से ये चैप्टर पढ़ाया जा सकता है, बट मुझे लगा एक ओवरव्यू हम तब दे पाएंगे जब कुछ एक हेडिंग दें। तो द फर्स्ट हेडिंग विच गोज विद दिस इज़ दैट आईज ब्लॉकिंग देयर वे। सो द मोमेंट ही स्टार्ट्स द जर्नी, जो टर्न्स हैं वो बड़े शार्पर और बम्पियर हैं, और जो सडन और अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल होती है उसकी वजह से रास्ता काफ़ी ब्लॉक्ड है। तो जो ऑथर हैं और डैनियल हैं, ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं, और जो उसके ड्राइवर हैं सीटन, वो ही ड्राइव्स इट वेरी सेफली बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ दोज बेंड्स एंड टर्न्स। तो काफ़ी शार्प बेंड्स हैं। फिर जर्नी के दौरान ही इनको मालूम पड़ता है कि वो 5210 मीटर्स अबव सी लेवल है। जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, जो आइसी टॉप लेयर है स्नो की, वो काफ़ी डेंजरस है। और कार उस पर, जैसे द रोड्स आर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, तो पूरा खतरा है कि कार जो है वो स्लिप ऑफ हो जाए रोड से। और बार बार स्नोफॉल की वजह से रास्ता उनका ब्लॉक होता है। और जैसे ही वो 5515 मीटर्स अबव पहुंचते हैं सी लेवल के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाता है कि देयर इज़ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ऑल्सो। तो सीटन भी क्या करते हैं, वो पेट्रोल टैंक का लिड ओपन कर देते हैं ताकि जितना भी इवेपोरेटेड फ्यूल है वो रिलीज़ हो जाए। तो और ऑथर को बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ quite low, so he experiences that breathing problem. He feels little restless और उनको headache होने लगता है। आगे चल के उन्होंने बताया है, हम इस हेडिंग को डाल करके क्लियर कर दें कि उन्होंने होर के बारे में बात की है। होर इज़ अ नेम ऑफ प्लेस। ये टाउन जो है होर, ये जब वहाँ पहुँचते हैं बाय लेट आफ्टरनून, छोटा सा टाउन है ये। डेनियल जो कि लासा से वापस आ चुके हैं, क्योंकि डेनियल नैरेटर को होर में छोड़ करके वो लासा चले गए थे। फिर वो रात भर में वापस आ जाते हैं। सीटन ने तब तक जो उनके टायर का फ्लैट टायर हो गया था, जो उसको रिपेयर किया। अब होर के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने चैप्टर में। होर काफ़ी ग्रिम और मिजरेबल सी जगह है, क्योंकि कोई वेजिटेशन आपको अगल बगल नहीं नज़र आता। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें नज़र आती हैं, डस्ट और रॉक्स। और एक तरीके से ये कह लीजिए कि यहाँ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज है, वेस्ट है हर तरफ। और अनलाइक द पास्ट द प्लेस नो लॉन्गर अपीयर्ड होली। तो पास्ट में, अतीत में ऐसा था कि ये जो जगह थी होर, इट वाज अ होली प्लेस, लेकिन आज जब ये जर्नी करते हैं और ये देखते हैं तो इट इज़ नो मोर अ होली प्लेस नाउ, इट हैज़ टर्न इनटू अ रिफ्यूज। एकदम अजीब डस्टी और रॉकी सा है, बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है। फिर उसके बाद से होर के बाद ये पहुँचते हैं डॉर्चन। वहाँ जब पहुँचते हैं तो रात के 10:30 बज चुके हैं। डार्चन के एक गेस्ट हाउस में रेस्ट करते हैं, और काफ़ी अजीब गुज़रती है उनकी ये रात। ट्रबल्ड नाइट इसलिए है क्योंकि उनका साइनस जो है वो ब्लॉक हो चुका है। उनको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। ही वॉज नॉट एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन एंड फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप। तो उनको ऑक्सीजन की कमी लग रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, सोने में परेशानी हो रही। तो पूरी रात वो बैठे रहे, बिल्कुल एक क्षण सो नहीं पाए। उसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, दिस शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट हेडिंग। रीचिंग डार्चन के बाद है विजिटिंग द मेडिकल कॉलेज। उसके बाद अगले दिन वो मेडिकल कॉलेज गए। सीटन उनको डार्चन मेडिकल कॉलेज लेकर के गए। डॉक्टर ने ये भी बताया कि ठंड की वजह से हुआ है, एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड पर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया और उस रात वो काफ़ी अच्छा सो पाए। उसके बाद से सीटन जो है वो लासा के लिए अब निकलते हैं। लासा इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। तो जब तब तक वो बोलते हैं डार्चन में ही रहने के लिए ऑथर को। और उसके बाद से वो इधर ऑथर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनकी डार्चन में मौत भी हो जाए, क्योंकि जैसी उनकी फिज़िकल स्टेट था, उन्हें लगा कहीं ऐसे मैं यहीं ना मर जाऊं। लेकिन फिर उन्हें लगा कि आई एम अ गुड बुद्धिस्ट, सो आई शुड बिलीव इन लाइफ। ही रादर बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और उनको ज़्यादा ये था कि भाई, ही वॉज वरीड इट कुड अफेक्ट हिज बिजनेस एज ही मे नॉट गेट मोर टूरिस्ट टू बी अकम्पनीड। तो उन्हें सिर्फ ये टेंशन थी कि भाई मेरी वजह से इस बंदे को लॉस ना हो, इसके बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मर भी जाऊँ यहाँ पर, ठीक है। तो टूरिस्ट नहीं मिलेंगे उसको इस जगह पर लौटने के लिए, तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद से एक ज़िक्र आता है ड्राई डार्चन का। ड्राई डार्चन का यहाँ मतलब है, जैसे होर है, होर टाउन, वैसे ही डार्चन भी काफ़ी डस्टी है,
वहाँ पर भी बहुत ढेर लगा है कूड़े करकट का। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर थोड़ी शॉप्स हैं डार्चन में, और ये टाउन जो है काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है डार्चन में। बहुत अकेलापन उसे महसूस होता है, और बहुत पिलग्रिम्स क्योंकि नहीं होते हैं, तीर्थयात्री नहीं होते हैं, तो उसके बाद से उन्हें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सीज़न है जिसमें विज़िट करना चाहिए, टूरिस्ट विज़िट करते हैं, उससे ये पहले ही पहुंच गए हैं, इसलिए जो है शायद पिलग्रिम्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और नेक्स्ट हेडिंग हम दे रहे हैं, मीटिंग नोरबू। उनकी मुलाकात जब नोरबू से होती है। नोरबू कौन है? नोरबू एक दूसरा पिलग्रिम है जो कि एक तिब्बतन पिलग्रिम है, और एक्चुअली ही इज़ अ तिब्बतन बट ही वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। तो वो काम करते थे चाइना बीजिंग में, लेकिन तिब्बतन थे, एक पिलग्रिम थे। तो वो भी ऑथर की तरह ही माउंट कैलाश का कोरा करने आए थे, बट वो अकेले नहीं करना चाहते थे, और उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसा हो जो उनकी इंग्लिश को समझ सके। तो कैफ़े में जब बैठे हुए थे तो नोरबू को उन्होंने देखा जब इंग्लिश बुक पढ़ते हुए, तो उन्हें लगा कि भाई चलो कोई तो है ऐसा। उन्होंने नोरबू ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो ही टू वॉज देयर टू डू कोरा, बट ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। कोरा करने तो आए थे, लेकिन वो रिलीजियस नहीं थे, बहुत धार्मिक नहीं थे स्वभाव के। तो दोनों ने डिसाइड किया कि माउंट कैलाश वो चढ़ेंगे। They decided to climb Mount Kailash. So let us see this map. This is telling you the ancient history about Silk Road. You can see the lines, red and the blue lines are the silk routes. Okay, and now let us see how it earned its name, why these routes were called Silk Road. First of all, Silk Road earned its name from Chinese silk, a highly valued commodity that merchants transported along these trade networks. So just now the red and the blue line seen in the map, these are the trade networks, these are the silk routes, or this particular silk road, it earned its name because of the word silk. This silk which was one of the highly valued commodity, यानी चाइना में सबसे ज़्यादा, सबसे प्रेशियस, सबसे महंगा कमोडिटी सिल्क था, जिसको मर्चेंट्स ने इन नेटवर्क्स पर के थ्रू वेस्ट और ईस्ट, अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ में इनको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो एक्चुअली सिल्क रोड एक वास्ट ट्रेड है, और जिसमें नेटवर्क कनेक्ट हुआ यूरोप का एशिया से, यानी यूरेशिया, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, एंड देन लैंड और सी रूट्स दोनों कवर अप किए गए। तो आप देख सकते हैं ये मैप, ठीक है ना, जहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्क रूट्स जो है आप इंडियन ओशियन में भी हैं, और इंडिया के इर्द गिर्द, और चाइना में भी है, मेडिटेरियन सी को भी कवर कर रहा है। तो रोड एज वेल एज सी दोनों ही इसका हिस्सा बने। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में कि सिल्क रोड जो था ये एक एंशिएंट नेटवर्क तो था ही ट्रेड रूट्स का। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था ये ज़रूरी है जानना, और वो थे हान डायनेसिटी चाइना के, जिन्होंने उस वक्त उन रीजन्स को, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स को लिंक किया 130 BCE और 1453 CE के बीच में। तो जितने भी आपको वेस्टर्न साइड में सिल्क रूट्स दिखेंगे वो सिल्क के लिए ही फेमस थे, सिल्क को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसके अलावा और भी चीज़ें की जाती थी। और जितने भी ईस्टर्न साइड में ये रूट्स बने उनमें गोल्ड और बाकी की कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। सिल्क थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि वेस्टवर्ड की जब मैं बात करी थी तो सिल्क को तो वेस्टवर्ड भेजा गया, वूल्स, गोल्ड और सिल्वर को ईस्टवर्ड्स भेजा गया, और इसी सिल्क रोड के थ्रू इंडिया से बुद्धिज़्म जो है चाइना में आया, और नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी भी आई, इंडिया से नहीं लेकिन बाकी कंट्रीज से, बट मेजरली बुद्धिज़्म रीच्ड चाइना बिकॉज ऑफ दिस सिल्क रोड। तो खैर ये हम अब इसके बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए चलिए कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर्स जो स्टोरी में हैं
वो है। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट मेजरली जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑथर का, नरेटर का। जो ऑथर है वो एक्चुअली एक प्रोफेसर है ज्योग्राफी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट है। और चूँकि ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं तो आपको पता है चल रहा होगा कि यहाँ पर उन्होंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी की काफ़ी बात की है सिल्क रोड के थ्रू। और इस ट्रैवलॉग में आपको आगे जब आप बढ़ेंगे तो ऑथर के अलावा, नरेटर के अलावा एक और कैरेक्टर है जिनका नाम सीटन है और वो इस कार के ओनर हैं जिसको हायर किया है नरेटर ने, ऑथर ने, इस जर्नी के लिए। सीटन इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट गाइड। तो ही इज़, कार तो उनकी है ही ड्राइव्स दैट कार, ही इज़ अ टूरिस्ट गाइड ऑल्सो। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है डेनियल, जिनको इंटेंशनली नरेटर ने अपने साथ रखा है क्योंकि ये इंटरप्रेटर है और कहीं ना कहीं नरेटर को ये लगता था कि एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी जब वो इस जगह पर इस रिलीजियस विज़िट के लिए, इस कोरा के लिए, जो है माउंट कैलाश तक की जर्नी तक के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डेनियल जो है ये बिलोंग्स टू लासा और कुछ दूर तक डेनियल ने ऑथर का साथ दिया था इस जर्नी में। उसके बाद एक लेडी है जिनका ज़िक्र आता है लामू, सिर्फ एक बार ही इनका ज़िक्र है, लेकिन ये ज़रूर बता दें कि ये वही लेडी हैं जिन्होंने एकोमोडेशन दिया था रावू में, जहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, रावू से माउंट कैलाश तक। तो रावू में एकोमोडेशन लामू नाम की एक लेडी ने दिया था और जब वो रावू से जाने लगे तो उन्होंने ऑथर को एक गिफ्ट भी दिया। उन्होंने लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन का कोट उनको प्रेजेंट किया था जब वो माउंट कैलाश जा रहे थे। उसके बाद से एक और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं बट ड्रॉकबाज का जिक्र आया है। ड्रॉकबाज कोई कैरेक्टर नहीं है बट यहाँ जो नोमैड शेपर्ड्स होते हैं, जो गडरिये होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो शीप्स चलाते हैं, उनको बोलते हैं। और नोमैड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो खाना बदोश होते हैं। तो जब आप इन हिल्स से गुजरेंगे तो आप ड्रॉकबाज को देखेंगे जो अपने फ्लॉक्स के साथ, अपने शीप्स के साथ, गोट्स के साथ आपको नज़र में आ जाएंगे। इसमें दोनों मेन और विमेन दोनों होते हैं, उनको ड्रॉकबाज कहते हैं। और वो थिक वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और वो जब भी कोई कार वहाँ से गुजरती है तो वो थोड़ी देर रुक करके उसको स्टेयर करते हैं और वेव भी करते हैं एट टाइम्स। तो जब नरेटर की कार जब गुजर रही होती तो वो उसको भी स्टेयर करते हैं एंड दे वेव एट देम। नोरबू, लास्ट में एक कैरेक्टर है नोरबू जो कि जिसकी मुलाकात ऑथर से होती है और वो एक तिब्बतन है एक्चुअली, बट ही वर्क्स इन बीजिंग, यानी चाइना में काम करते हैं वो एक चाइनीज़ एकेडमी में, जहाँ पर वो सोशल साइंसेस के जो है फैकल्टी में है और वहाँ पर वो मॉरल साइंस के जो है स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, तो ही वर्क्स देयर इन बीजिंग और यहाँ पर वो माउंट कैलाश वो भी एक पिलग्रिमेज यानी कोरा करने आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हो गए। इनके अलावा दो कैरेक्टर्स और हैं जिनके बारे में आपको बता दूं। एक है इकाई कावागुची जो कि एक जापानीज़ मॉन्क है। दूसरे हैं स्वेन हेडन जो कि एक ये भी एक जो है छोटा सा बस एक जिक्र है। वो भी he was one of the monks who got inspired when he came to लेक मानसरोवर। ठीक है ना, तो ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनका थोड़ा सा जिक्र है। तो दिस वाज ऑल चिल्ड्रन फॉर today's video and I would explain the chapter line to line in my next video. Bye bye, God bless you all.